वेलकम टू कल्चर वल्चर। आई एम प्रतीक और आज हम बात करने वाले हैं मैट्रिक्स रिजरेक्शंस के बारे में। आपको याद होगा मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था अबाउट द ट्रेलर ऑफ मैट्रिक्स रिजरेक्शन। तो मैं कुछ दिनों पहले ये फिल्म देखने गया था और मुझे लगा कि मुझे इसका थोड़ा एनालिसिस करना चाहिए। तो आई थिंक ये वीडियो इस बारे में है, बट बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो मैं आपको थोड़ा सा ना एनालिसिस करने से पहले आपको थोड़ा फिल्म का जिस्ट दे देता हूँ। तो जो नियो होता है, नियो इज बैक इन द मैट्रिक्स एंड ही हैज़ फॉरगॉटन व्हाट हैज़ हैपेंड बिफोर and he is now a game developer who has made apparently a very famous game called The Matrix, which is about his previous life, which is about his life as Neo. He's very famous in this new Matrix and he's adored by people. He's making another game. Smith is also in the new Matrix. Smith is now his boss and who's apparently looks very friendly. And there is Trinity too, but Trinity has also forgotten, like Neo, that she used to live outside the Matrix. She's also a part of the Matrix now. So this film starts with that. This film shows that our Neo, like in the first film, is very depressed. He's very depressed. I mean, he's taking the blue pills, and he's going to he's seeing a therapist also. Therapist played by Neil Patrick Harris, and the therapist tells him, "Oh, you're doing well. You're doing well. You're doing well in life. Just keep on popping the blue pill. If you keep on popping the blue pill, you will keep off this singing feeling in you that maybe you are a slave." Okay, so our hero, he has forgotten who he used to be until Morpheus comes, and Morpheus frees him from the Matrix yet again, and he realizes, oh God, yet again. So whatever have we had done before, does it not matter? Does none of it matter? But then the people in the ship which frees him tells him, नहीं ऐसा नहीं है, कुछ तो चेंज हुआ ही है. So and then Neo sees that Trinity is also in the Matrix. Before he got freed from the Matrix, he thought he and Trinity has some sort of connection, but he couldn't pin it down what it was. So what he does, he goes back in the Matrix, he frees Trinity, tries to freeze Trinity, and उसी में सारा स्ट्रगल होता है. बेसिकली एंड गेम ये होता है कि जो मशीन्स होती हैं वो पिछली बार से ज़्यादा अभी स्मार्ट हो जाती हैं. ये सोचती हैं कि Neo is apparently very powerful with Trinity, so why don't we do this thing? We separate both Neo and Trinity, but not too much, just enough so that they know each other exist, and they don't form a good bond, and so they don't become very powerful. So पहला सवाल ये होता है कि मशीन्स ने नियो और ट्रिनिटी को अलग ही क्यों किया. So आप फर्स्ट फिल्म में देखोगे ना, so Neo himself doesn't believe that he is the one. He doesn't believe that he is the one. He got this belief that he doesn't know he is the one, and apparently, and I think he is also not the one, whatever it is. But the realization of anything real in his life happens because of Trinity. It is because of Trinity believed in him that he believed in himself. So that is why for Neo, Trinity is very important, because he didn't know if he is the one, but he know that he knows about love. So machines, they have gotten smarter. Machines, they have gotten smarter, and they have decided to keep Neo and Trinity apart. And since they now know this, they have kept Trinity and Neo apart in the Matrix. But then upon being releasing, when Neo sees, oh yeah, Trinity is also in the Matrix, so what he does, with the help of others, he frees Trinity from the Matrix, and that's where the entire story of the movie happens. Okay, तो पहली चीज़ पे आते हैं कि इस फिल्म में काफ़ी सारी पॉइंट्स, चीज़ों पे, थीम्स पे टच किया गया है. तो हर थीम पे हम बारी बारी से आते हैं, ठीक है. तो पहली जो थीम है, जो बहुत ही एपरेंट है, और वो आई थिंक इट हिट्स द पॉइंट, वो ये कि कि ये जो दुनिया है ना जिसमें आजकल हम रहते हैं, इट्स अ वर्ल्ड ऑफ डिस्ट्रैक्शन. सो द अर्लियर मैट्रिक्स, जो पहला वाला मैट्रिक्स था, वो आप कंट्रोल करता था थ्रू प्लेजर्स. तो जैसे कि आप देखते हैं कि जो एक कैरेक्टर होता है पहले मैट्रिक्स में, जो मशीन्स के साइड चला जाता है बिकॉज उसको वो वेल्थ से और उसको गुड फूड से ल्योर करते हैं. तो इस जो ये वाला मैट्रिक्स है, ये लोगों को अपनी तरफ ल्योर नहीं करता, ये लोगों को फ्री ही नहीं होने देता. ये लोगों को कैसे फ्री होने देता?
through distractions, through constant, through bombarding their mind with information 24/7, so that they never have the time to think anything through. So what they do is that they keep jacked up in the system. So I think जो रेफरेंस जैसे कि हमारा जो न्यू है, जब भी वो कुछ काम करने बैठता है, जब भी वो सोचता है अपनी नेचर ऑफ रियलिटी के बारे में, कोई ना कोई आके उसको डिस्टर्ब कर देता है, कोई ना कोई आके उसको डिस्टर्ब कर देता है. Every time he begins to think of something serious, something or the other develops in. He never has that, me time alone, where he thinks deeply about something. And अगर आप इसका देखोगे तो एक रियल लाइफ इसका अगर आप रेफरेंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आजकल हम जब भी मोबाइल फ़ोन भी उठाते हैं, हम कोई भी चीज़ उठाते हैं ना, तो हमें जो मोबाइल फ़ोन्स हैं जिनको आए हुए आई थिंक एक डेकेड से ज़्यादा हो चुका है, इन्होंने किस तरह से हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है कि आज हम कभी भी 5-10 मिनट शांति से नहीं बैठ सकते. वी कीप ऑन गेटिंग दीज नोटिफिकेशंस एंड ऑल दैट, एंड समथिंग और द अदर्स कीप्स ऑन बॉदरिंग अस. इवन इट इज़ नॉट ऑफ वेरी of that much importance, but हम अपने आप को we let ourselves be bothered by these notification, by this bloops, by these things. So I think the film is trying to comment on that this matrix, this system, it functions through sheer distraction. कि आपको इसका सिर्फ एक ही पर्पस है कि आपको सोचने ना देना, कि आपको कॉन्स्टेंटली आपको डिस्ट्रैक्शन फीड इन करना, so that you are just completely jacked up in the system 24/7. ठीक है, कि आप इसमें हमेशा लगे रहो और आप इससे बिल्कुल भी बाहर ना जा पाओ. ठीक है, सो it is all its purpose is to keep you jacked in. Okay, so that is what I think the film is trying to show. The second चीज़ जो मुझे लगी कि इसमें जो बहुत ही एक मुझे इंटरेस्ट, जो एक दूसरी थीम है जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, वो है इस फिल्म में जो एनालिस्ट का कैरेक्टर है. तो जो एनालिस्ट है, ही नोज एवरीथिंग अबाउट न्यू एंड ही नोज एवरीथिंग अबाउट एवरीवन. दैट इज हाउ ही कुड कंट्रोल एवरीबडी. सो व्हाट आई थिंक द एनालिस्ट रिप्रेजेंट्स द टेक, बिग टेक, in our world, जो हमेशा हर किसी के बारे में जानते हैं. When Neo comes up with his problems to him, they tell him very soothing tales about him. He doesn't, he plays the analyst, the therapist. तो एक तरह से आप देखोगे जो ये बिग डेटा कंपनीज है ना, ये भी एक तरह से एनालिस्ट का काम करती हैं. और ये बहुत अच्छी चीज़ फिल्म में ये दिखाई है कि जो नील पैट्रिक हैरिस का कैरेक्टर है एनालिस्ट का, इसको अब एनालिस्ट बोला गया है फिल्म में, नॉट द थेरेपिस्ट. ओके, सो ये जो जैसे जो बिग डेटा कंपनीज भी है ना, वो एक एनालिस्ट की तरह काम करती है. एनालिस्ट की तरह इसलिए काम करती हैं क्योंकि हम जो अपना डे टू डे जो इतना डेटा फीडिंग करते हैं, चाहे कोई वेब पेज सर्च करें, चाहे हम कोई कि हम चाहे सोशल मीडिया यूज़ करें, जो बिग डेटा है ना, ये हमेशा हमारी जो इंफॉर्मेशन है इसको हमेशा 24/7 इंटरप्रेट करता रहता है. देयर इज सम थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स और थर्ड पार्टी कंपनीज आर कॉन्स्टेंटली इंटरप्रेटिंग दिस डेटा, कॉन्स्टेंटली एनालाइजिंग इट, so that they have more information about us, so that they interpret us well and direct us to suitable advertising. Okay, so आप ये देखो कि इसका पूरा बिग डेटा का काम ये है कि हमें एनालाइज करना. So Neil Patrick Harris plays this character whose job is to analyze people, and specifically Neo, because he is the anomaly in the system. So I think the analyst in the film represents these big data companies, who are controlling us by collecting our data and analyzing us 24/7. और नेक्स्ट चीज़ जो मुझे सबसे अच्छी लगी, नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग थीम जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी इसमें, वो है इसमें जैसे कि द अर्लियर जायन का, तो जो अर्लियर फिल्म है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में जो जायन था वो अब नहीं है. सो इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय आयो. So Niobe, who was also in the first 3 films, leads Io now, and she says to Neo that कि यार जो जायन था ना, वो एक मैट्रिक्स का अनदर ही फॉर्म था. कि मतलब अगर मैट्रिक्स में वैरायटीज़ हैं, खाने को ज़्यादा वैरायटी है, पहनने को वैरायटी है, देयर इज अ वुमन इन द रेड ड्रेस, तो ज़रूरी है कि जायन को उसका एकदम अपोजिट होना. So in Matrix there was variety, but in Zion there was no variety. People used to wear same kind of clothes. Their food used to taste like rust. So what Niobe says is that कि जो Zion था ना, उसने अपने आप को एक पोलर अपोजिट इमेज बना लिया था
मैट्रिक्स की, कि मतलब जो भी मैट्रिक्स करे वो उसका उल्टा होगा। अगर मैट्रिक्स में वैरायटी है तो जायन में उसके उल्टी चीज़ें होंगी, ठीक है। अगर मैट्रिक्स में वैरायटी है तो जायन में सेमनेस होगी। सो उसकी कंस्ट्रक्शन जो थी, जो जायन की कंस्ट्रक्शन थी, वो उसकी एकदम अपोजिट थी मैट्रिक्स की। सो Niobe says that it was just the polar opposite of Matrix. It was not the, something which was very new and radical. So what she does is that कि वो आयो जो नया प्लेस है जहाँ पे ह्यूमंस रहते हैं, because Zion is now destroyed, आयो इज अ प्लेस नाउ जहाँ पे मशीन को भी यूज़ किया जाता है टू क्रिएट अ न्यू सोसाइटी, जहाँ पे मशीन और ह्यूमंस के हाइब्रिड रहते हैं, जहाँ पे दे आर ग्रोइंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, देर आर specific things, there is space for colors, taste, okay. Even if you see Niobe's wardrobe, they are wearing colorful costumes, okay. So you see that there is a difference, that it's not the same Zion. It's Io is way different than Zion. It has variety, it has color, but the difference is that, but there is also a difference that कि जो Zion था वो it was trying to fight off the matrix, it was trying to free people from the matrix, whereas जो आयो होता है कहता है हमें फ्री नहीं कराना यार, हमें अपना एक स्पेस दे दो, हमें एक अपनी सेफ स्पेस बनानी है, सेफ स्पेस बनानी है, उसी में हम सब्जी उगाएंगे, फल उगाएंगे और हम वही करेंगे, हमें मैट्रिक्स से लड़ाई नहीं करनी, हमें लोगों को फ्री नहीं करना। तो जब बाकी टीम मेंबर्स होते हैं जो फ्री करते हैं नियो को मैट्रिक्स से, वो बोलते हैं कि अरे हमें फ्री करना है, हमें लोगों को फ्री करना है, तो कहती नहीं ना ना, वॉर से नॉइज़ होती है, तो हमें जो है हमें सिर्फ और सिर्फ एक सेफ स्पेस बनानी है। तो आप सेफ स्पेस का मतलब समझ रहे हो ना, आजकल बहुत ज़्यादा सेफ स्पेस चल रहा है। सो या शी इज़ लाइक नहीं, आई वांट टू मेक अ सेफ स्पेस, बट देन लेटर ऑन शी लोग बोलते हैं कि आई डोंट केयर वट एवर यू आर सेइंग, we'll gather a team and then we'll go and take Trinity out of the matrix, and she consents to it. Okay, so that is the difference between the Zion of previous times and this Io. So एक चीज़ दिखाई गई है कि चीज़ों में प्रोग्रेशन होता है, ठीक है, कि अब ये जो Io है, it doesn't want to fight the matrix, it wants to coexist with it. Okay, सो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग जो मुझे लगी। जो मुझे चौथी चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगी ना, तो इस फिल्म में कमेंट्री की गई है अबाउट आर्ट बीइंग यूज्ड एज अ कमोडिटी। सो आप फिल्म की बिगिनिंग में देखोगे, वो सारे एग्जीक्यूटिव्स बैठे हुए हैं, वो सोच रहे हैं कैसे हम इस गेम को, हम जो मैट्रिक्स के गेम है, बेसिकली इट्स अ गेम इन द मैट्रिक्स, उसको हम कैसे बेचें, लोग क्या क्या पसंद करते हैं, so they are all discussing these ideas so that it can be sold better. They talk about revolution, they talk about how revolution can be sold to people. So you understand that कि जो एक आर्ट है, जैसे मैट्रिक्स जो एक फिल्म थी which can be said it's an anti capitalist message था फिल्म का, वो अब एक ऐसा कमोडिटी यूज हो रही है कि कि लेटर ऑन देखोगे उसकी काफ़ी सारे गेम्स आ गए हैं या सो व्हाट हैपेंस इज दैट कि पॉपुलर कल्चर में चाहे कोई भी फिल्म हो, इवन दो फिल्म हो या कोई भी पीस ऑफ पॉपुलर कल्चर हो जो जिसका मैसेज भले ही बड़े एंटी कैपिटलिस्टिक हो, वो फिर भी एक कमोडिटी की तरह यूज़ होता है, वो एक ऐसी चीज़ के लिए यूज़ होता है जो मार्केट की, जिसमें सेलिब्रिटी बहुत ज़्यादा है। मैंने आई थिंक पिछली वीडियो में बात की थी कि इवन दो काफ़ी सारे शोज और पॉप कल्चर में ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें आ रही है जो जिनका मैसेज अपेरेंटली वेरी एंटी कैपिटलिस्टिक है, बट नाउ वो एक ऐसा कमोडिटी की तरह यूज हो रही है। मैंने स्क्विड गेम के बारे में बात की थी कि स्क्विड गेम इवन दो उसका मैसेज कितना एंटी कैपिटलिस्टिक है, बट इट्स द मोस्ट वॉच शो इन द नेटफ्लिक्स, इट मेड नेटफ्लिक्स रिच बिग डेटा कंपनी, एंड शायद उसके फ्रेंचाइज में निकलेगी, शायद जैसे कि मैट्रिक्स की फ्रेंचाइज निकल रही है। सो यू सी दैट एनीथिंग व्हिच हैज ए एंटी कैपिटलिस्ट message or something which stands as in opposition to capitalism is also being used in capitalism to proliferate itself, so that it helps capitalism to generate even more revenue. So you see that this is happening. This has happened to to art, maybe say any art which has an anti-capitalist message in popular culture. तो अब आप ये बोलोगे, एक थियोडोर अडोर्नो है, वो बोलते हैं कि पॉप कल्चर जो है ना, चाहे वो कैसा भी हो, वो ना यही करेगा, वो ना लोगों को बेवकूफ़ बनाएगा, वो लोगों को डम डाउन कर देगा, वो यही करेगा। बट देन आप देखो कि फिर कि कुछ लोग बोलते हैं कि पॉप कल्चर में सब बकवास ही होता है, जो हाई आर्ट होती है ना वो सही चीज़ होती है,
मतलब हाई आर्ट में लोग जाएंगे भाई, ऐसी कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज देखेंगे, उनको पता नहीं चलेगा भाई ये क्या देख लिया। वो नॉन कैप वो एंटी कैपिटलिस्ट आर्ट है कि मतलब वहाँ पे अगर कोई बंदा आगे तरबूजा लेके खड़ा हो जाएगा और वो तरबूजा लोगों के सामने बैठ के खाएगा, तो वो आर्ट अच्छी है, क्योंकि वो क्या कहते हैं, वो को मॉडिफाई नहीं कर सकते, उसको आप एज अ मार्केट में बेच नहीं सकते हो। बट हम तो सब जानते हो ऐसा हुआ है, कि आर्ट इज नाउ, नो मैटर वेदर इट्स अ हाई आर्ट, लो आर्ट और या पॉपुलर आर्ट, it is now used as a commodity. People think that if they're making high art, they are outside the capitalism, they are somehow opposing the capitalism. But these high art biennales and all that, these places are itself supported by the big capital. Okay, so हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी आर्ट जो है वो कैपिटलिज्म से बाहर है, या कोई भी आर्ट या कोई भी पीस ऑफ पॉपुलर कल्चर है जो एंटी कैपिटलिस्ट है, वो कैपिटल के बाहर, वो कैपिटल के कहते हैं ना कि एक कैपिटल के लॉजिक से बाहर है, एवरीथिंग इज कैपिटलिज्म इन दैट सेंस. सो आई थिंक व्हाट द डायरेक्टर फियर्स इज दैट कि उसकी आर्ट को एज अ कमोडिटी की तरह यूज किया जा रहा है. एंड एक सीन में शी आल्सो एक्सप्रेसेस दिस कि एक सीन में व्हेन नियो सिट्स इन फ्रंट ऑफ स्मिथ हु इज हिज बॉस नाउ, हिज बॉस स्मिथ टेल्स हिम कि देखो पता है वार्नर ब्रदर्स ने, एंड दैट्स अ सीन इन द फिल्म, कि वार्नर ब्रदर्स ने हमें बोला है कि भाई अगर तुमने नहीं बनाई ना फिल्म, तो हम जो है ना वो तुम्हारे बिना ही फिल्म बना लेंगे. सो यू अंडरस्टैंड इट, व्हाट डायरेक्टर थ्रू दिस फिल्म इज आल्सो ट्राइंग टू शो कि यार उसका इंग्विश है, उसको बनानी पड़ रही है, इवन दो वो नहीं चाहती है बनानी, बट उसको बनानी फिल्म पड़ रही है, क्योंकि कि बिकॉज दैट्स हाउ इट इज, बिकॉज द स्टूडियोज वांट बिजनेस, एंड कि आर्टिस्ट को के पास ऑप्शन नहीं है बट उसी कमोडिटी को दोबारा बना के उसके अंदर शायद कुछ अपना मैसेज डाल के उसको पब्लिश करना. ओके, सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग. ओके, या तो आप बिग स्टूडियोज के डिक्टेट्स पे चलो, या फिर यू अलाउ अदर्स टू टेक अ बेबी अवे फ्रॉम यू. सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग. ओके, सो I feel these are some very themes that I saw in the Matrix, and I thought कि इसका कुछ जो आजकल हम लाइफ जीते हैं उसका उससे कुछ नाता है. So yeah, that is what I want to say. Thanks for watching, guys. Tell me how do you like our video. Tell me if you have any suggestions. Okay, thanks for watching, guys. Bye bye.